Okay, good morning students. Today we are going to discuss chapter number 16, data handling, exercise 16.2. Okay, so from book CPA, page number 246. Okay, actually we have done first 5 questions. So now this is the question number 6. Okay, so what is question number 6? Question number 6, actually we have the following are the scores of 32 students in a science test. This is the scores of 32 students, okay, from science test. So firstly, part A, constructive frequency table. Okay, part A, constructive frequency table. Okay, actually this is using the intervals. Okay, so actually we have already given intervals. So firstly we can write here the first column, scores of science test. We can write here science test. Okay, this is the first column. Okay, the second column is tally marks. Okay, and third column and last is frequency. Okay, बच्चे. So firstly we have given, we will solve these questions using intervals. We have given 30 to 39. 30 to 39. Second one is 40 to 49. It means difference is 9. I have told you yesterday, difference should be same. Okay, so next one is 50 to 59. Actually we will check what is the highest value. According to which 91 and 95. Okay, so 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99. Okay, बच्चे. So now check the value which is between 30 to 39. 39 is here. 39 बच्चे इसमें इंक्लूड होगी. ओके, क्योंकि यहाँ से 40 से स्टार्ट हो रहा है. 30 to 39 कितनी वैल्यूज है चेक करो कितनी वैल्यूज है. 30 to 39 इसे राउंड कर सकते हैं. दिस वैल्यू 30 to 39 में ये आएगी. सेकंड वन 2 30 to 39. Check carefully, okay, otherwise your sum will be wrong. This one, it means how many values? 30 to 39. 1 2 and 3. 1 2 3. It means here is 3. Okay, actually this first column is the main important. Their difference should be same. 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69. Now second one is 40 to 49. It means जो 40 है वो 40 हमने इसमें काउंट करना है और जो 49 है वो भी काउंट करना है. ओके बच्चे, सो सेकंड वन 40 टू 49. हियर इज 41. इसे राउंड कर लेते हैं. तो 49 ये भी है. ये वन ये देखो ये 49 तो यहाँ पे 49 है. इट मींस ये भी काउंट होगा इसमें. दिस वन enough. Now count 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Here is 5. Okay, so आपने ऐसे सभी कर देने हैं. That's it. अगर मैं करूँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ. So now first is difference should be same. Highest value check कर लो. Highest value यहाँ पे 95 है. It means we will go to the 90 to 99. So 95 यहाँ पे आ जाएगा. अंडरस्टूड बच्चे, यहाँ काउंट कर देंगे. That's it. और जो इसका टोटल है वो कितने स्टूडेंट्स बोले हैं? इसका 32. तो ये 32 होंगे. ओके बच्चे, जो इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द बी पार्ट? The passing marks for the test in 50
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट। जो पास मार्क्स है वो 50 है। ओके, तो 50 से ज्यादा और 50 कितने कितने स्टूडेंट्स के वो काउंट कर लो इसमें। 50 से ज्यादा कितने हैं, देन आई थिंक द आंसर विल बी 24। ओके बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। 7 8 is same. Now come on the question number 9. What is question number 9? A survey investigates the number of hours that a person surfs the internet per day. कितना यूज कर रहे हैं बच्चे। The following list shows the survey results of 27 people. ये 27 है, कितने घंटे वो यूज कर रहे हैं इंटरनेट को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, बाय इंटरवल्स। एप्लीकेशन है गिवन भी है, एक्चुअली ऑलरेडी गिवन। सो हम फर्स्ट कॉलम को क्या कर सकते हैं, फर्स्टली ओके यहां लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स by 27 people used. Number of hours by 27 people. So second column is tally marks. एक्चुअली ये कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आपने ये लिखना है। आपने इसको कैसे भी मोल्ड करके आप ले सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ओके, लेकिन इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। Now third one is frequency. ओके बच्चे, सो नाउ फर्स्टली इसमें क्या है, टैली मार्क्स जो है क्लास इंटरवल्स कहां से होता है, 0.1 2 3। नाउ सेकंड वन इज 3.1 2 6। Now check that this main important things. Difference should be same. 3 का डिफरेंस है, 3 घंटे का। Now second one क्या आएगा, थर्ड वन 6 1 इक्वल टू 9। 9 से ज्यादा है, यस है, तो इट मींस 9.12 12। ये बच्चे डिफरेंस है ना इसका, ये सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस शुड बी सेम। अगर ये सेम नहीं है तो आपका आंसर क्वेश्चंस गलत है। ओके, तो काउंट करो 0.1 से 3 तक काउंट। देखो यहाँ पे 3 है जो वो इसमें काउंट होगा एंड स्टार्ट फ्रॉम 0.1। ओके, सो चेक कर लेते हैं। फर्स्टली एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। 0.1 मींस दिस इज आल्सो अप टू 3, दैट मींस आल्सो दिस इज आल्सो this one, this one, this one, this one. Here is your next is here and is also here. Okay, so now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. It means 12 students. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 is 12. It means 12 बच्चे ऐसे हैं जो इतने घंटे यूज कर रहे हैं। सो सेकंड वन 3.126 चेक कर सकते हैं। एक ये है 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Here is it. Now ये आप सारे चेक कर लेते हैं, ये आपका आंसर सही रहेगा। नाउ इसका आंसर जाएगा, ये कितने स्टूडेंट्स से आपने काउंट करने हैं, 27। तो इसका टोटल 27 आना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके बच्चे, ये दोनों आपने खुद करने हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। दैट्स इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन,
This is the first column, this is the second column, this is the third column. ओके, ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं इंटरवल्स में। इंटरवल्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उसके बीच में से जो है वो आपने काउंट करके यहाँ लिख देंगे। दैट्स इट। इसमें भी सेम है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 16.2 क्लास इंटरवल कैसे करना है और सिंपल कैसे करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।